I would now like to request Professor Vinod Solanki ma'am to be on stage. Ma'am has served as the head of Department of English at Deen Dayal Upadhyay, Gorakhpur University, and as Director of the Human Resource Development Center, UGC. She is also associated with the Vivekanand Kendra, Kanyakumari. Currently, she is a respected member of the Executive Council of the University of Tripura. Ma'am, it is an honor to have you with us today. We are eagerly looking forward to your insightful and inspiring talk. Parents, let's invite her with a huge round of applause. And my applause to the budding great citizens of the country. Vande Mataram. Whenever I get an opportunity to talk to very young ones, I feel very tempted. I feel tempted to tell them what is the most important aspect of human existence. So, within a very short period, I would love to introduce what life is. What is our existence about? What are we here to do? And what we really are. Just these pertinent questions which knocks every heart, which at times perturbs every mind. The answer is very simple, worth listening and following. Our rishis address us. Shunvant vishve amritasya putra आई धामानि दिव्यानि तस्थु. हमारे ऋषि हमें किस नाम से पुकारते हैं? बहुत प्यारा नाम. शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा. वे हमें कहते हैं हम अमृत पुत्र हैं. और जब हम अमृत पुत्र हैं तो हम आनंद के अधिकारी हैं. We have got this nomenclature from our sages of ancient India. So these brilliant children, though they are very small in age, but they have an aspiration to know what their ancient Indian wisdom is. They have recited mantras from Rigved, from Srimad Bhagavad Gita. So I feel very enthusiastic to tell them what we really are. हमारा अस्तित्व वास्तविक रूप से क्या है और कैसे बहुत सरल ढंग से हम इसे समझें. श्री अरविंद द लाइफ डिवाइन में फर्स्ट चैप्टर एस्पिरेशन में लिखते हैं, इन द लिविंग laboratory of animal, nature has worked out man. And now, in the living and thinking laboratory of man, and with his conscious cooperation, she plans to work out Superman. So, एक बात बहुत सीधी सी बहुत स्पष्ट है कि हम कहाँ से आए हैं. एनिमल की लिविंग लेबोरेटरी से हमने इमर्ज किया है और फिर हमें क्या बड़ा गिफ्ट डिवाइन शक्ति ने दिया है, दैट इज थिंकिंग. दिस इज स्पेशल प्रिविलेज which man has been granted by nature. But this is not the end of the story. And this is not the end of the journey. We still have to traverse a very long path from man to Superman. One thing is very clear, that in the process of evolution, nature is doing it
very silently within us. But nature also demands, Shakti also demands that since man has been given thinking power, so nature demands that man must collaborate. जैसे जो आपका बड़ा बच्चा होता है, उसे पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि वो भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करे, वैसे ये विराट सृष्टि, ये विराट प्रकृति अपने बड़े पुत्र से, अपने बड़ी संतान से, कॉमन जेंडर यूज कर रहे हैं, आप डिफरेंस मत करिए कि पुत्र अलग पुत्रियां अलग, देयर इज कॉमन जेंडर ऑल्सो। तो ये प्रकृति अपनी बड़ी संतान से, और उसकी बड़ी संतान कौन है? मानव, मनुष्य, जिसको एक लंबी यात्रा से, क्रम विकास से उसने उसकी संरचना की है, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, और हर किसी में एक विशेष प्रकार का आकर्षण दिया है, एक विशेष प्रतिभा दी है, कुछ छिपा के दिया है, और कुछ हम अपने अंदर से प्रकट कर पा रहे हैं, ऐसी भी हमें क्षमता दी है। तो हम अपनी इस एवोल्यूशनरी जर्नी में हमको कहाँ तक जाना है? फ्रॉम मैन टू सुपरमैन, जिसकी साधना हमारे ऋषियों ने की, और अभी पिछली शताब्दी में अनेक अनेक महापुरुषों में, जिसमें श्री अरविंद सबसे आगे तक गए, वो साधना है एडवेंट ऑफ सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस, और हमें वहां तक जाना है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, जब हमें पता चलता है कि हमारा रास्ता शुरू तो होता है बहुत सकरे, ककड़ीले, पथरीले रास्ते से, किंतु यदि हमारी एस्पिरेशन है, और यदि हमें उस डिवाइन शक्ति को रिसीव करने की, फील करने की हमारी क्षमता है, हमारी अभीप्सा है, तो वो रास्ता ऐसे दिनों दिन चौड़ा होता जाता है। तो संक्षेप में थोड़ी सी बात समझेंगे कि अभी आज की स्थिति हमारी क्या है। हमारी सत्ता के 3 प्रमुख केंद्र हैं, हमारा भौतिक शरीर, फिर हमारा प्राणिक शरीर, और मनस तत्व, फिजिकल, वाइटल और मेंटल। ये 3 सत्ताएं हमारे पास हैं। इनकी जो संरचना है, उसमें ज्ञान और अज्ञान मिला दिया गया है। दिस इज कॉल्ड इनकॉन्शियंट। कॉन्शियंट में इन लगा है, तो ऑपोजिट हो गया ना, तो दोनों मिक्स्ड हैं। और अभी तक जो मनुष्य की यात्रा है मनस तत्व तक, वो कैसी यात्रा है? क्योंकि उसमें अज्ञान का पुट है, अज्ञान भी मिश्रित है, तो उसके आगे जाना है, उस सीमा को पार करना है, उस लिमिटलेस के ओर आगे बढ़ना है। और इसका प्रमाण क्या है? हमारे बच्चे ठीक से समझेंगे। अभी मनुष्य अज्ञान में क्षेत्र में है, इसका प्रमाण है कि विश्व में इतने विश्वविद्यालय, इतने विद्वान, इतने वैज्ञानिक, इतनी प्रयोगशालाएं, इतना अनुसंधान, किंतु फिर भी युद्ध हो रहा है विश्व में, अशांति है दुनिया में, अपूर्णता है। तो मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य क्या है? उसका धर्म क्या है? कि वो उस अज्ञान की सीमा को पार करके उस ज्ञान में क्षेत्र में प्रवेश करे, उसका अतिक्रमण करे, उसको ट्रांसेंड करे, और जो ऊपर के हमारे चेतना के केंद्र हैं उसको प्राप्त करे। तो बच्चों, बार बार, दिन में कई बार
जब हमारा वाइटल कहीं कोई एंजाइटी लाता है, कहीं उसमें थोड़ा सा एंगर आता है, कोई ऐसी डिजायर आती है जिसको आपके पेरेंट्स क्लासिफाई करते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, और वैसा नहीं करने दिए जाने पर हम थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, अवसाद में आते हैं, तो ये सब प्राण तत्व का खेल है. ऑल दिस इज इन द रीजन ऑफ द वाइटल. और जब हम ये बात समझ जाते हैं कि हमें अपने इन तीनों सत्ता के इन तीनों आधारों को परिष्कृत करना है, इसे उन्नत करना है, इसे आगे बढ़ाना है, जिससे एक स्वतंत्र यंत्र की भांति ये इस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन में कोलैबोरेट कर सकें और हमारे महान ऋषियों के उस संकल्प को सिद्ध कर सकें. तो ये जो रिफाइनमेंट है, अभी जैसे आपने जो अभी डिस्प्ले किया, अपने म्यूजिक, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, और आपने जो श्लोक पढ़े, और आपने अपनी क्लासेस में जो रोज आप लेसन्स पढ़ते हैं, उसमें कोई ना कोई एक चीज होती है जो उस परम तत्व का संकेत करती है, क्योंकि वो तत्व हमारे अंदर भी है और हमें उसे ऊपर सर्वोच्च रूप से प्राप्त करना है. तो इसको हम कैसे करें? और ये हमारे करने की क्षमता है, हम इसके अधिकारी हैं. इसलिए तो ऋषि हमें आनंद के अधिकारी कहते हैं, इसीलिए तो वो हमें अमृत पुत्र कहते हैं. तो ठीक से ये बात हम समझ लें. वी आर नॉट द सिनर्स. द कॉन्सेप्ट ऑफ sin is a Western concept. In India, हमारी प्राचीन परंपरा में, हमारी संस्कृति में पाप कोई शब्द नहीं है. हमारे यहाँ त्रुटियां हैं, छोटी छोटी त्रुटि करते हम हैं, और जब हम त्रुटि करते हैं तो सदैव उसके सुधार की संभावना है. इसलिए कभी कोई पापी है, कुछ सिनर है, या हमारा उद्गम सिन से है, ऐसा कभी मत समझना. आप अपने उस प्राचीन ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं. इसीलिए जयपुरिया स्कूल आपको संस्कृत भाषा की भी शिक्षा देता है. आप हिंदी भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं और आप अंग्रेजी में तो बहुत ही आगे हैं. तो हमारा जब वाइटल रिफाइनमेंट होता है, मेंटल रिफाइन होता है हमारा, जो इनकॉन्शियंट ग्रेड का है, तब कैसा होता है? तो एक छोटी सी कहानी. चैतन्य महाप्रभु का नाम सबने सुना है? बच्चों ने सुना है? सुना है ना? चैतन्य महाप्रभु एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ते थे. छोटे से थे. सिद्धांत कौमुदी व्याकरण का एक ग्रंथ पढ़ाया गया. तो उनके एक क्लासमेट ने कहा कि हमने सिद्धांत कौमुदी की बहुत अच्छी व्याख्या लिखी है, मैं चाहता हूं मैं तुम्हें सुनाऊं. तो चैतन्य निमाई नाम था उनका बचपन का, बाद में चैतन्य महाप्रभु बने. तो निमाई ने कहा हाँ ठीक है, हम सायंकाल गंगा पर के तट पर आएंगे और वहां नौका विहार करेंगे और तुम अपनी व्याख्या सुनाना सिद्धांत कौमुदी की. तो दोनों फ्रेंड्स गंगा के किनारे जाते हैं, एक नाव में बैठते हैं, और निमाई कहते हैं अपने फ्रेंड से कि थोड़ा सा मैंने भी कुछ लिखा है, तो पहले मैं सुना देता हूँ, फिर तुम्हारी व्याख्या सुनते हैं. तो निमाई ने अपनी व्याख्या सुनानी शुरू की. जैसे जैसे वो पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनके मित्र का मुखमंडल थोड़ा उदास होता जाता. तो वो उनकी बात समझ गए. उन्होंने पूछा कि तुम क्यों दुखी हो रहे हो, मैंने ठीक नहीं लिखा है क्या? तो उनके उस मित्र ने कहा नहीं निमाई, मैं तो सोचता था कि मैंने सर्वोत्तम व्याख्या लिख दी है और यही आने वाले विश्व के लिए एक प्रकाश का स्तंभ होगा, किंतु तुम्हारी व्याख्या तो मुझसे कहीं बहुत अधिक है, बहुत अच्छी है.
तो निमाई छोटे से बालक हैं, प्यारे से नाव में बैठे हैं। निमाई बड़े प्रेम से मुस्कुराते हैं और अपने उन पृष्ठों को जिसमें उन्होंने वो व्याख्या लिखी है दोनों हाथ में लेते हैं, हाथ ऊपर उठाते हैं और उस ऐसे गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं और अपने मित्र से कहते हैं, प्यारे मित्र देखो, मैंने तो अपनी व्याख्या गंगा जी को समर्पित कर दी। तुम्हारी सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या युग युगों तक पढ़ी जाएगी और तुम ही इसके प्रथम और सर्वोत्कृष्ट व्याख्याकार प्रमाणित होगे। तो ये हमारे वाइटल का है। ये कहाँ से आया? ऐसा छोटा सा निमाई कैसे कर पाया? अभी आपके जब और सेशंस होते हैं तब पीयर प्रेशर और ये वो पर बहुत बातचीत होती है, आप इसको ठीक से समझ पाएंगे कि हमको हमारा सबसे बड़ा काम अपने इन 3 सत्ताओं को उत्कृष्ट दिशा में आगे बढ़ाना है, उसको ऊपर उठाना है, उन्हें विकसित करना है और उन्हें रिफाइनमेंट के द्वारा अज्ञान के क्षेत्र से चेतना के क्षेत्र में ले जाना है। यही आज का पाठ है। हमें पूरा विश्वास है आपने बहुत ध्यान से सुना है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।